Hello everyone. So welcome back to 12th class chemistry topic aldehydes and ketones. So in the previous lecture you will see aldol condensation. We had seen aldol condensation, and in case of aldol condensation what are the conditions, एक बार just revise करते हैं उसको. एल्डोल कंडेंसेशन में क्या क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन थी कि देयर शुड बी अल्फा हाइड्रोजन एटम present. Alpha hydrogen atom must present in carbonyl compound. Second condition है, it has to be carried out in presence of dilute alkali like 2% NaOH or KOH, or we can use weak bases like sodium carbonate or sodium hydrogen carbonate, or even we can use barium hydroxide, weak bases. They are acting as a catalyst here, and the third condition, all the reactant should be warm enough, है ना. वार्म करना है यानी रूम टेम्परेचर से थोड़ा हाई. So these are the three conditions required for aldol condensation. We had seen one reaction. We will take once again here the reaction of, now let us take reaction with propion aldehyde, CH3 CH2 CH double bond O, another molecule of propion aldehyde. So this is propion aldehyde. We will take another molecule of propion aldehyde. But before that we have to once again revise that point. It is carried out by those aldehyde which possess alpha hydrogen atom. So this is propion aldehyde. We will take propion aldehyde. अब propion aldehyde का कौन सा हाइड्रोजन हमारे काम का है? अल्फा हाइड्रोजन. तो दूसरा जो मॉलिक्यूल लेंगे प्रोपियोन अल्डिहाइड का, उसको चलो इस तरह से लिखो CH3 CH2, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है. इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू अल्डिहाइड और कार्बोनिल कार्बन. अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और कार्बोनिल कार्बन. तो क्या होगा, कल हमने देखा था वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? दिस अल्फा हाइड्रोजन will move towards oxygen and forms hydroxyl group. कंडीशन क्या है? dilute alkali, है ना, 2%, और यहां कंडीशन चाहिए वार्म. डन. अब देखिए क्या प्रोडक्ट आ रहा है. CH3 CH2, then here comes alpha hydrogen and making it OH, then new bond creates between carbon. Here is CH3 CH and CHO. Done. So this is an aldol product. Because it possesses aldehyde and alcoholic group. ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं हम. 1 2 3 4 5. 5 is spent. Now it is having two substituents here in the form of methyl group and in the form of hydroxy group. Methyl group is on the second carbon and hydroxy group is on the third carbon. But alphabetical order में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें? H और ये N. तो आएगा हमारे पास में 3 hydroxy 2 methyl pent 1 al. 2 methyl pent 1 al. This is the aldol product. Now इसके बाद क्या किया था हमने? इसे हीट किया था. हीट करने में क्या रिमूव होता था? H2O रिमूव हो रहा था. डिहाइड्रेशन. यानी हमने कल बात की थी कि ये 1 propion aldehyde molecule, ये second propion aldehyde molecule, they are condensing together
and forming an aldol product. तो कंडेंसेशन तो ये हो गया. अब इसके बाद यहाँ क्या आता है? एलिमिनेशन. एलिमिनेशन मीन्स रिमूवल of water molecule when this aldol product is heated. Remove water molecule यानी ये दोनों कार्बन से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा सेकेंड और थर्ड कार्बन से, एंड डबल बॉन्ड विल establish between them. So we get here CH3, CH2, CH, double bond C, CH3, CHO. आ गया, बैलेंस हो गया. 1 2 3 4 5 6 कार्बन, बिकॉज प्रोपियोन एल्डिहाइड 1 ईच कंटेन 3 3 3 6, तो 3 2 6, तो यहाँ 6 कार्बन आ गए. बैलेंस होगी रिएक्शन, एंड नाउ दिस इज अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, and this unsaturated aldehyde again can be named. So first carbon, second, third, fourth and fifth carbon. Fifth carbon, so pent, double bond is between two, pent 2 in 1 al. और मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे है? सेकेंड कार्बन पे. So 2 methyl pent 2 in 1 al. तो ये अनसैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिला. काय से मिला? प्रोपियोन एल्डिहाइड. वी हैव टेकन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपियोन एल्डिहाइड. अब इससे आगे हमें क्या पढ़ने का है? वी विल स्टडी नाउ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. We'll study cross aldol condensation. Condition remains the same, and now let us take cross aldol condensation. अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ ऑब्जर्व करते हैं हम? तो वो कैसा होता है कि हम डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले ले, डिफरेंट कीटोन्स ले ले, या वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन. हियर वी हैव टेकन सेम एल्डिहाइड. प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने सेम एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड लिया एंड सेम कीटोन दैट इज एसीटोन लिया, प्रोपेनोन. अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करना है तो कौन कौन कहाँ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन मिलेगा? व्हेन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स, 2 डिफरेंट ketones and 1 aldehyde and 1 ketone. If they will be condensed together, we get cross aldol condensation. Let us see that reaction by taking different aldehyde and how many products or what kind of product we get. तो कंडेंसेशन एलिमिनेशन रिएक्शन है ना. तो इसको हम बोलते तो है एल्डोल कंडेंसेशन, बट इसमें हमारे सिलेबस में जो इंक्लूड है कि एल्डोल भी बनाना है और उसको फिर एलिमिनेट भी करना है. तो यहाँ पर हमारे सामने जो याद रखने वाला पॉइंट रहेगा वो क्या है? कंडेंसेशन, यानी 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं और इसको फॉलोड बाय व्हाट? फॉलोड बाय एलिमिनेशन. तो दिस इट इज कंडेंसेशन एलिमिनेशन रिएक्शन. और याद रखने के लिए एलिमिनेट क्या होता है? तो याद रखेंगे कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग. नाउ लेट अस टेक दिस 2 different aldehyde. We take here CH3, CH, double bond O. What is this aldehyde? Acetaldehyde. इसे हम रिएक्ट करते हैं एक डिफरेंट एल्डिहाइड से. कौन सा एल्डिहाइड लिख रहा हूं जरा देखेंगे और मुझे बता देंगे, है ना. 1 2 3 कार्बन, प्रोपियोन एल्डिहाइड. प्रोपियोन एल्डिहाइड, this is alpha carbon and this alpha hydrogen will join here and create a hydroxy group. 2% dilute NaOH, warm condition. What product we get? CH3, CH, alpha hydrogen आने से OH बन गया. New bond develops between carbon. So new bond develops between 2 carbon atoms
and here is what CH3 and H and remaining is CHO. आ गया फिर से एल्डोल प्रोडक्ट आ गया ये, तो अपने समझने के लिए फिर से एल्डोल लिख के रखते हैं यहाँ पर, है ना. सो दिस इज एन एल्डोल प्रोडक्ट. नोमेनक्लेचर क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूट. ब्यूट में ब्यूट 1 अल, बिकॉज अल्डिहाइड इज ऑलवेज फर्स्ट कार्बन. नंबरिंग किया आपने, सो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्साइड. सो 3 हाइड्रोक्सिल 2 मिथाइल ब्यूट 1 अल. इसे क्या करना है? अब हीट करना है. तो क्या ये एलिमिनेट होने वाला है? H2O एलिमिनेट होगा. H2O is between carbon number 2 and 3. So when we eliminate H2O, what we get here is CH3, CH, double bond C, upper valency CH3 and side is CHO valency. So total number of carbon we have condensed 2 plus 3, here also 2 plus 3, and valency of this carbon is satisfied. Now name this. अब ये फिर से हमारा क्या हो गया? अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड. Unsaturated aldehyde 1 2 3 4. 4 is but. There is double bond between first carbon, second carbon, third and fourth carbon. So double bond is between second and third. तो but 2ene 1 al, और ये CH3 जो branch है, it is on second carbon. So 2 methyl but 2 methyl but 2ene 1 al is the cross aldol condensation product. क्रॉस कैसे हो गया? एक आपने एसिटल्डिहाइड लिया और दूसरा क्या लिया आपने? प्रोपियोन अल्डिहाइड. सो प्रोपियोन अल्डिहाइड आर मिक्स टुगेदर. नाउ अब आपके लिए असाइनमेंट हम क्या देते हैं? वी टेक हियर कीटोन CH3 CH3 double bond O, and we will take acetaldehyde, one aldehyde and one ketone, one aldehyde and one ketone. So this is acetone and this is acetaldehyde. Condense them together because this contain alpha hydrogen. So alpha hydrogen will combine here. Condition remains the same. Dilute NaOH 2% under warm condition. So अब क्या हो जाएगा? Product CH3 CH3. Then this will become OH. New bond develops between carbon and we get here CH2 CHO. So count carbon once again. 3 and 2 5. 3 and 2 5. So we have written all those carbon correctly. Now nomenclature of this compound. So this will be the first carbon, second carbon, third carbon and fourth carbon. Correct? तो अब इसमें fourth carbon is but. Fourth carbon is but. Aldehyde but 1 al. But branches or substituents, hydroxy group branch is CH3. So 3 hydroxy 3 methyl. क्या होगा nomenclature? 3 hydroxyl 3 methyl but 1 al. अब आप इसे एलिमिनेशन की तरफ प्रोसीड कर दो. -H2O कर दीजिए. तो ये दोनों कार्बन से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया. क्या बच गया आपके पास में? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CHO. देखिए परफेक्टली बैलेंस है. CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CHO. अब ये अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड. फिर से 1 2 3 4 कार्बन ब्यूट 2 इन 1 अल
और सब्स्टिट्यूशन ऑन थर्ड कार्बन, सो 3 methyl but 3 methyl but 2 in 1 al. Correct? So this is what we say cross aldol condensation. तो किसके बीच में हो रहा है? 2 different aldehyde, 2 different ketone, or 1 aldehyde and 1 ketone. So 2 different ketones, acetaldehyde, propionaldehyde, 1 ketone that is acetone, 1 aldehyde that is acetaldehyde will give this kind of cross aldol condensation. Okay, now in this cross aldol condensation, अब आपको एक रिएक्शन मैं देता हूं यहां पर, और उस रिएक्शन में देखते हैं कि क्या होने वाला है ना। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में सम रिएक्शंस यू हैव सीन ऑलरेडी, हमारे इस वीडियो में और प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। कंडेंसेशन क्या होने वाला है? वी टेक एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO, we take propionaldehyde CH3 CH2 CHO। अब इसके 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। जब इसका सेल्फ कंडेंसेशन होगा, सेल्फ कंडेंसेशन, और यहां पर क्रॉस कंडेंसेशन followed by elimination, तो followed by elimination, तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं अपने पास में? followed by elimination. So let us focus on this. So this is acetaldehyde, this is propionaldehyde, और इसके प्रोडक्ट आपको मोस्ट प्रोबेबली टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। लेकिन ये प्रोडक्ट्स को याद कैसे रखना है, ये रिएक्शन को कैसे याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में तो इतना पूरा लिख के चारों नहीं देखेंगे हम, और मल्टीपल चॉइस में भी आता है, तो कैसे इसे हम याद रखने वाले हैं, है ना। ये क्या है? A एसिटाल्डिहाइड, ये P प्रोपियोनल्डिहाइड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A is acetaldehyde and P is propionaldehyde. P is propionaldehyde. Propionaldehyde. अब जब मैं A और A को, यानी ये A, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, और जब इसको एल्डोल कंडेंसेशन को प्रोसीड करता हूं मैं, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है? कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो क्या मिलेगा? ब्यूट 2 in 1 al, ब्यूट 2 in 1 al, AA। जब मैं सेकेंड कंडीशन क्रिएट करता हूं सेल्फ वाली, अभी ये फर्स्ट और सेकेंड क्या है? सेल्फ वाली कंडीशन है। अब PP इसका एल्डोल, ये सेल्फ है ना, सेल्फ, इसमें 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन। तब आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? जैसे अभी हमने लिख के देखा था, तब आपको प्रोडक्ट मिलता है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब 6 कार्बन है, एक ब्रांच में चला गया, तो बचे कितने? 5। तो पेंट 2 मिथाइल पेंट 2 in 1 al। अब क्रॉस के हिसाब से आते हैं थर्ड कंडीशन, तो पहले A और फिर ये P, तो 2 कार्बन प्लस 3 कार्बन क्रॉस एल्डोल। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? फिर से यहां पर 2 मिथाइल, टोटल कार्बन 5 है, तो एक तो ब्रांच में गया, तो ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूट 2 in 1 al। देखो जरा अच्छे से, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम ऊपर लिख रहा हूं मैं। अब 4th क्या पॉसिबिलिटी है क्रॉस की?
कि आपने पहले लिया प्रोपियोन एल्डिहाइड और अल्फा कार्बन यूज कर रहे हैं एसिटल्डिहाइड. सो दिस इज 3N2, अगेन क्रॉस एल्डॉल. अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्रॉस एल्डॉल. ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, है ना. तब हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अभी हमने लिखा था यहां पर टोटल 5 कार्बन है, पेंट 2 इन 1 अल, पेंट 2 इन 1 अल. तो देखो ये यहां पर सेल्फ के फर्स्ट और सेकेंड प्रोडक्ट और क्रॉस के थर्ड और ये फोर्थ प्रोडक्ट ये मिलने वाले हैं फाइनली. तो आपको क्या करना है? ये रिएक्शन को इंडिविजुअली लिखना है और सॉल्व करके देखना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे. व्हाट आर दोस 4 प्रोडक्ट्स, what are those 4 products we get when acetaldehyde and propionaldehyde are subjected to aldol condensation, considering cross aldol condensation also. क्योंकि उसने दिया 4 प्रोडक्ट. 4 कब बनेंगे? जब आप क्रॉस और सेल्फ दोनों को कंसिडर करेंगे. अब ये कैसे इजीली इसको याद रख सकते हैं? देखो सभी में ये एक कॉमन आते जा रहा है. क्या ये कॉमन आ गया? 2 in 1 अल, 2 in 1 अल. सही है. जब आप 2 + 2 कर रहे हैं तो सिर्फ ब्यूट लिखना है आपको. जब आप 3 + 2 कर रहे हैं, 5 हो रहा है, ब्रांचिंग नहीं आएगा, तब आपको पेंट लिखना है. जब 3 + 3 लिख रहे हैं तो 2 मिथाइल पेंट, 2 + 3 लिख रहे हैं तो 2 मिथाइल ब्यूट. टोटल 5 कार्बन, टोटल 6 कार्बन, पेंट के 5, मिथाइल का 1, 6 कार्बन. यहाँ पर 5 कार्बन, ब्यूट के 4, ब्रांच मिथाइल का 5th कार्बन. यहाँ भी 5 कार्बन है, लेकिन ब्रांच क्रिएट नहीं होता है. ये मैंने आपको लिख के समझाया है, आप इसको लिख के देख सकते हो. तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फॉर लॉन्ग आंसर एज वेल एज फॉर द शॉर्ट आंसर. तो नीट के लिए ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन. सो दिस इज अबाउट क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन. नाउ वी विल टेक Kenny-Zaro's reaction. Just opposite to aldol condensation, we will see Kenny-Zaro's reaction. अब Kenny-Zaro's reaction में क्या होता है? This we will see. आ गया ये सब? तो याद रखेंगे इसको. ये स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं ना. अब हम बात करते हैं Kenny-Zaro's reaction. Now Kenny-Zaro's reaction shown by those carbonyl compound which do not possess alpha hydrogen atom, which do not possess alpha hydrogen atom. Aldol condensation में क्या था? alpha hydrogen was compulsory. यहाँ पर alpha hydrogen नहीं चाहिए हमको. So the name is Kenny-Zaro's reaction. Kenny-Zaro's reaction. और इसमें कंडीशन क्या है ये देखते हैं. कार्बोनिल कंपाउंड्स do not possess or do not have alpha hydrogen atom. अब ऐसे कौन से कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? है ना. तो जिसमें अल्फा कार्बन रहेगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा. हमें तो चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ऐसा कंपाउंड चाहिए. तो उसका एक एग्जाम्पल देख लो यहीं पर. पहले इसी पॉइंट को क्लियर करते हैं. देखिए हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं फॉर्मल्डिहाइड का. HCHO. Does it carry alpha hydrogen atom? No, because it does not have alpha carbon. ये तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है CHO.
ये तो अल्डिहाइड है, इससे जो कनेक्टेड कार्बन रहेगा वो अल्फा कार्बन होगा। यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन का तो सवाल ही नहीं आ रहा है। तो बात क्या हुई अपनी कि कार्बोनिल कंपाउंड which do not have alpha hydrogen atom. So we are having this example of formaldehyde which is not having alpha hydrogen atom. तो फॉर्मल्डिहाइड वन एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं बेंजल्डिहाइड का। अब इसको लिखते वक्त मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज लिखना पड़ेगा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। जैसे यहां पर मैं ये बेंजीन रिंग बना लेता हूं, ठीक है, ये बेंजीन रिंग आ गया, ये अल्डिहाइड हो गया। अब वी हैव 6 कार्बन with alternate double bond and 6 हाइड्रोजन, ये भी आपके समझ में आ गया है ना। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या आया, C6H5CHO, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में समझेंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, देखो तो जरा क्रिटिकली। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है कि कार्बोनिल कार्बन से जो कार्बन बॉन्डेड रहेगा वो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन। तो कार्बोनिल कार्बन ये हो गया, इससे बॉन्डेड ये कार्बन है, यानी दिस इज डेफिनेटली अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन है। लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नो, इट इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसके पास बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन है, बट अल्फा हाइड्रोजन इज मिसिंग, एंड दैट्स व्हाई बेंजल्डिहाइड इज आल्सो केपेबल ऑफ अंडरगोइंग कैनिजरोज रिएक्शन। क्लियर, दोनों एग्जाम्पल बहुत प्रिसाइज है। कैनिजरोज रिएक्शन shown by those carbonyl compounds or rather those aldehydes which do not have alpha hydrogen, and very well we had seen formaldehyde does not have alpha carbon, hence no alpha hydrogen. Acetaldehyde does possess alpha carbon but alpha hydrogen is missing. So these two examples, formaldehyde and benzaldehyde, they will show Kenny-Zarose reaction. So do remember this, we will use these two example in order to explain. तो first point आ गया अपना, क्या हो गया first point, they do not possess alpha hydrogen. Second, it requires concentrated alkali, approximately 50% concentrated NaOH or KOH. And it should be heated, not warm, it should be heated. Warm यानी रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा, हीट करना है यानी रूम टेम्परेचर से और थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर, तो ये हीट करना होगा। तो व्हेन हीटेड टुगेदर वी गेट Kenny-Zarose रिएक्शन। ओके, तो ये कंडीशन ध्यान में रखेंगे, Kenny-Zarose रिएक्शन को समझते हैं। अब ये Kenny-Zarose रिएक्शन को समझना है तो एक सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, one molecule of formaldehyde, another molecule of formaldehyde. अब सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, CH2O, CH2O, ये भी फॉर्मल्डिहाइड हो गया। नाउ दिस विल बी हीटेड विथ concentrated 50% concentrated alkali. प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, वी गेट हियर CH3OH, methanol or methyl alcohol, and another product which we get here is HCOONA. देख लो कार्बन कितने हैं, 1 2 कार्बन, 1 and 2 कार्बन, ऑक्सीजन 1 and 2 and here 3,
oxygen 2 and 1 3, the rest is properly balanced. Okay, so this is sodium formate. फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन गया, वी कॉल इट एज सोडियम फॉर्मेट. नाउ चलो अब ध्यान दे दो क्या हो रहा है इस रिएक्शन में. ये रिएक्शन में दो सिमिलर मॉलिक्यूल है, लेकिन एक मॉलिक्यूल मिथेनॉल में कन्वर्ट हो गया और दूसरा सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया. तो अल्डिहाइड का मिथेनॉल में कन्वर्शन, अल्डिहाइड का मिथेनॉल में कन्वर्शन, यानी एल्डिहाइड का अल्कोहल में कन्वर्शन कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? अल्डिहाइड का अल्कोहल में कन्वर्शन, ये है रिडक्शन. करेक्ट. तो यहां पर मिथेनॉल इज अ रिडक्शन प्रोडक्ट. Methanol is a reduction product while sodium formate is an oxidation product. Why we can say this as a oxidation product? उसको भी जस्ट यहाँ पढ़ लेते हैं. अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है आपको? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. और कार्बोक्सिलिक एसिड किसके प्रेजेंस में है? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के प्रेजेंस में. तो नेचुरली ये कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ कंबाइन हो जाता है? NaOH के साथ. तो उसके बाद क्या बनाएगा? वो सॉल्ट बनाएगा. इसीलिए आपको क्या मिला? एक कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड, और वो फॉर्मिक एसिड किसके साथ में कंबाइन हो गया? NaOH के साथ. तो आपको सॉल्ट क्या दे दिया उसने? सोडियम फॉर्मेट. तो हमारे लिए अब यहां पर क्या कंसीडर करना है? दिस सोडियम फॉर्मेट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट व्हाइल मिथेनॉल इज अ रिडक्शन प्रोडक्ट. वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन. क्या और इसमें इंटरेस्टिंग दिख रहा है हमको? ये भी देखते हैं अभी, है ना. इंटरेस्टिंग क्या दिख रहा है कि एक अल्डिहाइड रिड्यूस हो गया अल्कोहल में और एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया फॉर्मेट में, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर उसका सॉल्ट बन गया सोडियम फॉर्मेट में. तो ये रिडक्शन प्रोडक्ट है जो हमने लिखा है वहां पर, और ये है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ये भी हमने मेंशन किया है ना. रिडक्शन प्रोडक्ट और ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट. इसीलिए ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन. सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन. सो Kenny-Zaro's reaction is also known as self-redox reaction. It is also called as disproportionation reaction.